علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کٹا سیل نہیں ہو سکتا قربانی کے لیے. میں نے یہ نہیں کہا کٹا نہیں سیل ہوتا, کٹا سیل ہوتا ہے بھائی, کٹے کی قربانی کے لیے خریدنا. اور علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کٹے کی قربانی نہیں ہو سکتی اور آپ یہاں پر کٹے کی سیل لگا کے کھڑے ہیں. کٹے کا ہی کام کر رہے ہیں تو قربانی والے ہی ہم سے لے کر جاتے ہیں. عبدالقیوم ظہیر کو برا بھلا کہنے سے کٹے کی قربانی جائز نہیں ہو جائے گی. آپ مجھے 1000 دفعہ برا کہہ لیں لیکن آپ کے پاس دلیل نہیں ہوگی قربانی کرنے کی, آپ اپنے عمل کو ضائع کریں گے, اللہ کے ہاں آپ کا اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا. میرے پاس کٹے کی قربانی کرنے کے علاوہ آپشن ہی نہیں ہے. میں کئی سالوں سے کرتے ہوئے آ رہا ہوں, تو کیا وہ میری ساری ضائع گئی؟ اگر وہ 8 جانور موجود ہے اور ان کی موجودگی میں آپ کٹا صرف اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو پسند ہے, آپ کو اس کا گوشت بڑا کرارا لگتا ہے یا آپ کو یہ سستا مل جائے گا, تو بھائی قربانی کا اجر و ثواب اس سے آپ محروم ہو جائیں. اگر کسی صحابی نے جو ہے وہ کٹے کی یا بھینس کی قربانی کی ہوتی تو تاریخ کے اندر یا احادیث کے اندر یا آثار صحابہ کے اندر اس کا وجود موجود ہوتا. ہرن جو ہے یہ بھی ایک پالتو جانور ہے, یہ جنگلی جانور بھی ہے, اسے پالا بھی جاتا ہے. یہ بکری کی طرح ہے, بالکل اس کی شکل بھی ملتی ہے, جسامت بھی ملتی ہے. کیا کوئی اس کی قربانی کرنے کا فتویٰ دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کو قربان کیا ہے انہی جانوروں کو قربان کیا جائے گا تو اجر و ثواب ملے گا, وگرنہ اجر و ثواب نہیں ملتا. آپ نے کہا کہ کٹے کی قربانی نہیں ہو سکتی, جہاں پر ہم نے دیکھا کہ منڈی میں بڑی تعداد میں کٹے بکنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جانور موجود ہی نہیں تھا. جس دور میں شریعت مکمل ہوئی اس دور میں بھینس یا کٹا عرب کے اندر بالخصوص موجود نہیں تھا. نہ قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اس کا ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی, اونٹ کی قربانی کی, احادیث کے اندر موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ گائے کی, بیل کی قربانی کی, وہ احادیث کے اندر موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بکرے چھترے کی قربانی کی تو وہ احادیث کے اندر موجود ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو قربانیاں کی وہ بھی احادیث کے اندر موجود ہیں, صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں. اب یہ جانور الحمدللہ حلال جانور ہے لیکن قربانی کا جانور نہیں ہے, کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے. دلیل جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوگی, یا پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہترین لوگ ہیں میرے بعد, ان لوگوں کے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, ان سے یہ ثابت کیا جائے گا کہ ان میں سے کسی نے, کیونکہ فتوحات جو اسلام کی فتوحات ہیں وہ تو بہت دور تک چلی گئیں, یہاں تک کہ ان علاقوں میں جہاں پر آج ہم کھڑے ہیں, یہاں لاہور میں بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تشریف لائے ہیں. ہمارے پڑوس میں افغانستان موجود ہے, وہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تشریف لائے ہیں. یہاں تک کہ ایران کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تشریف لائے اور انہوں نے فتح کیا. اگر کسی صحابی نے جو ہے وہ کٹے کی یا بھینس کی قربانی کی ہوتی تو تاریخ کے اندر یا احادیث کے اندر یا آثار صحابہ کے اندر اس کا وجود موجود ہوتا. میں آپ کے اس چینل اور اس پروگرام کی وساطت سے اپنے بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عبدالقیوم ظہیر کو برا بھلا کہنے سے کٹے کی قربانی جائز نہیں ہو جائے گی. آپ مجھے 1000 دفعہ برا کہہ لیں لیکن آپ کے پاس دلیل نہیں ہوگی قربانی کرنے کی, آپ اپنے عمل کو ضائع کریں گے, اللہ کے ہاں آپ کا اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا, کیونکہ قربانی عبادت ہے اور عبادت اللہ رب العالمین نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے بیان کی ہے. اب میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو کہہ رہے ہیں جی قربانی کٹے کی جو ہے وہ کیونکہ یہ گائے جیسی ہے, حالانکہ یہ گائے جیسی نہیں ہے. اس کے میں درجنوں جو ہے وہ ڈفرنسز بتا سکتا ہوں جو گائے سے اس کو ڈفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مثلا اس کے سینگ جو ہیں وہ دیکھ لیں, کبھی بھی گائے کے سینگ اس طرح کے نہیں ہوں گے. دوسرا, اس کی جو چمڑا ہے اس میں اور گائے کے چمڑے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. اس کی پریگننسی میں اور گائے کی پریگننسی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسی طرح اگر آپ چلے جائیں تو ان کے دودھ میں اور گائے کے دودھ میں فرق ہوگا, کلر میں فرق ہوگا. پھر ان کا آپس میں کراس نہیں ہو سکتا, اگر یہ ایک جنس ہو تو آپس میں کراس ہو جائے. تو اسی طرح اور بہت سارے ڈفرنسز موجود ہیں. یہ پانی کا جانور ہے اور گائے جو ہے یا بیل جو ہے وہ پانی سے ویسے ہی بھاگتا ہے, ڈرتا ہے. یہ پانی کے بغیر نہیں رہنے والا جانور. تو ان کو زبردستی آپ جو ہے وہ قربانی کے اوپر پیش کرنا یہ قطعاً جائز نہیں ہوگا. اس کی میں مثال قرآن مجید سے یوں دینا چاہتا ہوں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں حکم دیا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس سے پہلے آپ وضو کریں.
वुजू का हुक्म पूरा सूरत अल माइदा के अंदर अल्लाह जुल जलाले वल इकराम ने बयान फरमाया। और उसी सूरत के अंदर अल्लाह जुल जलाले वल इकराम ने एक और हुक्म दिया कि अगर तुम्हारे पास पानी मौजूद ना हो, फ़इल्लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, तुम्हारे पास पानी नहीं है तो फिर मिट्टी जो है वो पाक मिट्टी के साथ तुम तयम्मम कर लोगे तो वुजू का कायम मकाम हो जाएगा और तुम नमाज पढ़ लोगे। नमाज नहीं छोड़नी, तुमने जो है वो तयम्मम कर लेना अगर पानी नहीं मिलता। इसी तरह पानी मौजूद है लेकिन बंदा मरीज है, अगर वो उस पानी को इस्तेमाल करेगा उसका मर्ज बढ़ सकता है या कोई और मसला उसके साथ हो सकता है, तो लिहाजा वो पानी की मौजूदगी में भी वो जो है वो वुजू नहीं करेगा बल्कि वो तयम्मुम कर लेगा तो उसकी नमाज जायज और दुरुस्त होगी। यहां पर यह है कि गाय मौजूद है, फिर यहां पर गाय से पहले भी कहना चाहता हूं, पानी मौजूद है, इमरान अली खान साहब, पानी मौजूद है, बंदा बिल्कुल सही है, बीमारी कोई नहीं है, और पानी के मौजूदगी में अगर कोई शख्स पानी छोड़कर मिट्टी के साथ जो है वो तयम्मुम करके नमाज पढ़ना चाहे तो कोई भी फिका का आलिम, किसी भी फिका से ताल्लुक रखने वाला वो इसकी नमाज को दुरुस्त करार नहीं देगा। अच्छा, अब मेरा सवाल अब है, मुझे समझिएगा, पानी मौजूद है, पानी की मौजूदगी में बीमारी नहीं है, लेकिन कोई शख्स जानबूझकर वुजू नहीं करना चाह रहा और वो कहता है क्योंकि कुरान मजीद में तयम्मुम का जिक्र भी है, मैं तयम्मुम करके जो है वो नमाज पढ़ लेता हूं, उसकी नमाज नहीं होगी। इसी तरह अगर दुनिया में जिस जगह पर मुसलमान रहते हैं, कुर्बानी करना चाहते हैं, गाय का जानवर मौजूद है, गाय और बैल दोनों है, इसी तरह बकरा बकरी मौजूद है, भेड़ का दुम्बा भी मौजूद है, भेड़ भी मौजूद है, ऊंट और ऊंटनी भी मौजूद है, वो 8 जानवर जिनको कुरान मजीद ने सूरत अनाम में जिक्र किया, बहीमतुल अनाम जिसको अल्लाह ने सूरत हज में जिक्र किया, अगर वो 8 जानवर मौजूद है और उनकी मौजूदगी में आप कट्टा सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि आपको पसंद है, आपको इसका गोश्त बड़ा करारा लगता है या आपको ये सस्ता मिल जाएगा, तो भाई कुर्बानी का अजर और सवाब उससे आप महरूम हो जाएंगे। अच्छा, मैं सवाल करना चाहता हूँ, ये हमारे व्यापारी भाई हैं जो सालों साल मेहनत करते हैं, उनकी खून पसीने की कमाई होती है ये कट्टा, सैकड़ों के हिसाब से यहाँ पर कट्टों की लाइन लगी हुई है, आप उनके सामने कह रहे हैं कि ये जायज नहीं है, अब वो बेचने के लिए आए हैं तो उनके लिए क्या हुक्म हो सकता है? अच्छा, पहली बात ये है कि ये हलाल जानवर है, क्या इसका गोश्त नहीं खाया जाता? आम दिनों में रोजमर्रा में जब भी जो है वो गोश्त लेने जाते हैं तो क्या होता है जी, ये कट्टे का गोश्त है, तो कट्टा तो वैसे भी सेल होता है, सारे साल ही सेल होता है, इसको कुर्बानी के साथ क्यों खास कर रहे हैं? अब भी क्या कुर्बानी आने से पहले लाहौर के अंदर या बाकी शहरों के अंदर जो है वो भैंस का या कट्टे का गोश्त बिकना बंद हो गया कि नहीं ये कुर्बानी होनी है? ऐसा नहीं है। इसका कुर्बानी के साथ ताल्लुक साबित करने के लिए आपको कुरान मजीद की कोई आयत देनी पड़ेगी जो कि नहीं है, आपको नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस देनी पड़ेगी जो कि नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और सलफ सालिहीन का, इवन के खैरुल कुरून जो 3 सदियां हैं पहली, उनके अंदर भी इसका कोई वजूद कुर्बानी का नहीं है कि कट्टे की कुर्बानी की जाती थी या भैंस की कुर्बानी की जाती थी। तो अब अगर कोई शख्स जो है वो इस तरह की कुर्बानी करेगा तो किताब और सुन्नत में उसका अजर जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ साबित नहीं होगा। व्यापारी भाई मौजूद हैं जो कट्टे यहाँ पर सेल कर रहे हैं, अल्लामा साहब कह रहे हैं कट्टा सेल नहीं हो सकता कुर्बानी के लिए। मैंने ये नहीं कहा कट्टा नहीं सेल हो सकता, कट्टा सेल होता है भाई, कट्टे की कुर्बानी के लिए खरीदना। और अल्लामा साहब कह रहे हैं कट्टे की कुर्बानी नहीं हो सकती और आप यहाँ पर कट्टे की सेल लगा के खड़े हैं। जो मैंने तो बछड़ों की सेल लगाई है, इधर हमारे बछड़े हैं। ये कट्टे किसके हैं? ये इधर आ जाओ। मैं तो कट्टा नहीं बेचता, मैं तो बछड़ा बेच रहा हूँ। ठीक, माशाल्लाह। आप कट्टे बेच रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक कट्टे का एवरेज रेट क्या है? इसका दोंदे के बारे तो में जितना का लोग लेने ये वाला कितने का है? ये वाला तो तकरीबन 3.5 लाख रुपए का है। 3.5 लाख रुपए का है। कट्टे का ही काम कर रहे हैं तो कुर्बानी वाले ही हमसे लेकर जाते हैं। तो अल्लामा साहब आप बेच रहे हैं, खरीदने वाले खरीद रहे हैं, कुर्बानी हो रही है, जिन लोगों ने सदियों से कुर्बानी करते आ रहे हैं कट्टे के लिए, तो क्या उनकी कुर्बानी जायज नहीं है? कुर्बानी कबूल नहीं होगी? सदियों से, वो तो 20 साल बेचारा कह रहा है, अभी उसकी उम्र भी 30 साल ही होगी। लेकिन जो बात कह रहा हूँ, अगली बात यह है कि कोई 20 साल से बेचे या 50 साल से बेचे या 200 साल से बेचे या 2000 साल से बेचे, बात तो यह है कि शरीयत का अमल है, हज शरीयत का अमल है। अगर आपके उकाड़ा के अंदर जो है वो हज किया जाता है, लोग जो है वो 9 ज़िल हज को, उकाड़ा शेरगढ़ का इलाका है वहां पर हज करते हैं, वही तमाम मामलात जो बैतुल्लाह का मक्का मुकर्रमा में हज होता है। क्या कोई शख्स ये अक्लमंद कहना शुरू कर देगा कि यहां पर भी जो हज होता है वो जायज है? सिंध के अंदर इसी तरह जो है वो कुछ नाम निहाद मुसलमान इकट्ठे होकर वो भी हज करते हैं, क्या वो हज जो है वो हज जायज होगा? इसी तरह ये जो कुर्बानी की जाती है, जब अल्लाह से साबित नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। चलें जी, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, फकी दे रहा हूं कि वो कहते हैं जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थी, अब है, आप दूध पीते हैं।
दूध पीने के लिए या इसका गोश्त खाने के लिए शरीयत ने बाकायदा उसूल वज़ा किए हैं हलाल और हराम के। इसके अलावा भी चौपाए मौजूद हैं जिनको पाला जाता है। घोड़ा जो है वो हलाल जानवर है, जबकि उसकी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। सही अल बुखारी के अंदर घोड़े के हिल्लत का मौजूद है, सहाबा किराम ने खाया है। और इसी तरह और बहुत सारे कंट्रीज, इस वक्त भी मुस्लिम कंट्रीज मौजूद है जहां पर घोड़ा खाया जाता है। तो क्या कोई शख्स पालतू जानवर के तौर पर, बहीमतुल अनाम के तौर पर घोड़े की कुर्बानी करना जायज़ समझेगा? कोई भी जायज़ नहीं समझेगा। हिरन जो है ये भी एक पालतू जानवर है, ये जंगली जानवर भी है, इसे पाला भी जाता है। ये बकरी की तरह है, बिल्कुल उसकी शक्ल भी मिलती है, जसामत भी मिलती है। क्या कोई उसकी कुर्बानी करने का फतवा देगा? कोई भी नहीं देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जानवरों को कुर्बान किया है उन्हीं जानवरों को कुर्बान किया जाएगा तो अजर सवाब मिलेगा, वगरना अजर सवाब नहीं मिलता। मेरा सवाल फिर वहीं आ जाएगा, घूम घूम के वहीं आ जाएगा कि जो लोग इतने सालों से कट्टा बेच रहे हैं, कट्टे की कुर्बानी कर रहे हैं, अब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। मेरे पास कट्टे की कुर्बानी करने के अलावा ऑप्शन ही नहीं है। मैं कई सालों से करते हुए आ रहा हूँ, तो क्या वो मेरी सारी ज़ाया गई? अच्छा, पहली तो बात यह है कि आपके ऊपर या किसी और शख्स के ऊपर मेरा फतवा देना फर्ज नहीं है। मैंने मसला बयान करना है, हुक्म बयान करना है कि जो शख्स अपनी कट्टी की कुर्बानी पीछे कर चुके हैं, अल्लाह उनकी कबूल कर ले, भी मुझे कोई इतराज नहीं है। ठीक है, मेरा काम है मसला बयान करना। अब जब उन तक मसला पहुंच गया दीन का, तो अब तो वो रुक जाएंगे ना। अब उन्हें रुकना चाहिए कि नहीं? उन्हें रुकना चाहिए कि जब गाय मौजूद है और वापर तादाद में मौजूद है, उसकी किसी भी इलाके के अंदर कोई नस्ल कम नहीं हुई गाय की, तो फिर आप गाय को छोड़कर कट्टे की तरफ क्यों जाएंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुखालफत करते हैं, फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन व युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की, आर्डर की, आपकी सुन्नत की मुखालफत करते हैं, उन्हें डर जाना चाहिए कि अल्लाह उन्हें दर्दनाक अजाब में या किसी फितने के अंदर मुब्तला ना कर दे। अब्दुल कय्यूम ज़हीर का जुर्म यह है कि मैं सच बोलता हूं और तुम्हें वो सच कड़वा लगता है। जाइए, जाके देखिए, लोगों को तकलीफ होती है। मेरे सवालात जो एतराज़ात है उनका जवाब नहीं है। भाई शरीयत मुकम्मल हो गई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। उस शरीयत के अंदर कट्टे का जिक्र नहीं है, भैंस का जिक्र नहीं है। अलावा अब्दुल कय्यूम साहब ने पिछले साल भी ये सवालात उठाए थे और लोगों को गाइड करने की कोशिश की थी कि कट्टे की कुर्बानी जायज़ नहीं है, चाहे वो 3.5 लाख मिल लें, 5 लाख मिल लें या सदियों से करते हुए आ रहे हों, तो इनके मुताबिक कट्टे की कुर्बानी जायज़ नहीं है। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। फ़िलहाल इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।